हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगमा। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबके चहेते सुशांत। सुशांत, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन जीत की जिद। व्हाट अ रोल यार, क्या कैरेक्टर। मतलब एक तो मजा आ गया आपको देख के। तो प्लीज बताइए रिस्पॉन्स कैसा रहा। Thank you so much, Divya. Thank you for the badhaiyan, and I love your shirt, the camouflage shirt you're आपके हिसाब wearing. से ही मैंने पहना वो Fauji कैरेक्टर। ekdam. So the response has been fantastic here, overwhelming. So much love, beyond our expectations. So जिस intention से बनाई थी कि लोग inspire हो, इतने सारे messages आ रहे हैं. And the most beautiful message I received on Insta from one chap uh, who wishes to join the armed forces. वाह। He has uska SSB interview hai 8th Feb ko, and he said, sir, after seeing this, my confidence has gone 10 times up, and thank you for making this before my SSB interview. So that was so inspiring for me. ऑफ कोर्स दिस इज द बेस्ट थिंग। मतलब आप एक आर्मी किसी को ज्वाइन कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, बहुत ही कमाल। लेकिन काफी डिफरेंट किस्म का सख्त किस्म का कैरेक्टर था एंड लॉट्स ऑफ फिजिकल स्टफ हैपनिंग अराउंड यू। तो कितना टफ था ये इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कैरेक्टर मतलब। Tough to tha yaar, because when we initially sort of tried to figure the character out, so it was looking like कि यार बहुत ही ruthless है, ये सिर्फ टॉर्चर है, करता है, जल्लाद है एकदम। तो ये क्यों है, ऐसा क्यों है? So because he could have ended up looking like a very negative character. कर तो रहा है, maybe why is he enjoying all this? Is he a sadist? What? So then Vishal, the director, me, and our co-writer and co-producer Joycen Gupta, we were having a discussion, and we were talking about the torture scene. So Vishal said, and we want that this character has a glint in his eyes during that time when the torture scenes are happening. But why? What is the reason for that glint? Then we figured out. I started asking questions about what is armed forces all about, paramilitary, special forces all about. So then we figured out that the success percentage is hardly 4 to 5%. If 100 people apply, 4 or 5 finish the training and become special forces officers. So that means, and these are already elite people who are coming from army background and other wings. So they're already brave people, tough people who are coming in. So उस tough में से भी you have to choose the toughest 4 or 5. इतनी hard training है. So failure is part of कर्नल रंजीत चौधरी's life every day. वो रोज देखता है कि लोग टूट रहे हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, और जब उसे ऐसा बंदा मिलता है जो नहीं टूट रहा है, जो हार नहीं मान रहा है, तब उसकी आंखों में चमक आती है. So जो हमको लगता है सेडिज्म है, नो एक्चुअली वो है कि यार मुझे मिल गया अपना बंदा, ये है हीरा, इसे तराशना है और देखता हूं अब इसकी लिमिट कहां तक है. तो उसके लिए वो और सख्त हो जाता है. So it's such a lonely life, such a painful life for him, where वो बड़े बहादुर लोगों को, अपने ही फौजी भाइयों को टॉर्चर कर रहा है, क्योंकि उसे हीरा ढूंढना है, ऐसा हीरा जो कल क्रॉस बॉर्डर मिशंस में भी जाएगा जी, ऐसी कंडीशंस में जाएगा जहां मर भी सकता है, पकड़ा भी जा सकता है, बट शर्त है कि वो टूटना नहीं चाहिए बंदा. So that's why जब ये समझ में आ गया, then we knew कि भैया ये है इसकी साइके, ये इसका ड्राइविंग फोर्स है. Then we added things, designed the character like that. तो पूरा वो दीप और मेरा जो कर्नल चौधरी का जो कॉन्वर्सेशन है रात को कैंपफायर के पास, वो सीन इसी डिस्कशन से निकल के आया कि यार ये जो इंस्ट्रक्टर है, इसकी साइड भी तो हमें बतानी चाहिए ना लोगों को. करेक्ट. कि ही इज डूइंग अ जॉब, वेरी टफ जॉब, आसान नहीं है, एंड ही इज नॉट एंजॉयिंग इट, बट ही एंजॉयज द मोमेंट ही इज फाउंड द गाय. जो इसको मिलता है दीप में, जो पहली बार इसे लगता है, जो पहली बार फेल होता है. हाँ, few seconds late. Okay, your video just stopped, froze. Yeah, now it's clear. Can you hear me? Yeah. मैंने बोला वो वही few seconds late हो जाता है और आप उसे रिजेक्ट कर देते हो. हाँ, जी. So वहां पर for me as a character ये था कि यार मुझे लगा था, मैंने इस बंदे की लिमिट में टेस्ट कर रहा था, मुझे लगा था ये एक्स्ट्रा चैलेंज ले लेगा, पर ये फेल हो गया. मतलब फेलियर मेरे लिए भी है, मेरा जजमेंट कॉल गलत हुआ. ये बंदा अभी इस चैलेंज के लिए तैयार नहीं था. सो इट्स नॉट जस्ट दीप्स फेलियर, कर्नल के लिए वो उसका भी फेलियर है कि यार ये मेरा जजमेंट कॉल गलत हो गया.
उसकी वजह से एक बंदे के 6 महीने वेस्ट हो गए। सो इट्स अ वेरी रेजर्स एज वाली लाइफ है कर्नल रंजीत चौधरी की और सारे स्पेशल फोर्सेस इंस्ट्रक्टर्स की। सो माय परफॉर्मेंस इज डेडिकेटेड टू द स्पेशल फोर्सेस इंस्ट्रक्टर्स जिनको पहली बार देख रहे हैं ऑन स्क्रीन। जी, आपके कैरेक्टर को देख के वो स्कूल में जो स्ट्रिक्ट टीचर या स्ट्रिक्ट सर होते थे ना, उसकी याद आ जाती है। तो क्या आपके साथ कोई ऐसे सर थे जो स्कूल में, एनसीसी में, स्काउट्स में जो इतने स्ट्रिक्ट थे, कड़क? कुछ बताइए। सारे बहुत सारे थे भाई, बहुत सारे अच्छे टीचर्स मिले मुझे, बहुत सारे। सो वेरी थैंकफुल, आई बीन वेरी फॉर्चुनेट। और जो सबसे अच्छे मेरे जो गुरु हैं जिन्होंने एक्टिंग सिखाई मुझे, इब्राहिम अलकाजी, पिछले साल उनका, बट वो लेजेंड है हमारी कंट्री के, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के फाउंडिंग डायरेक्टर्स में थे। इनफैक्ट उन्हें जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की डायरेक्टरशिप ऑफर की गई थी, तब तक वो सिर्फ अंग्रेजी थिएटर करते थे मुंबई में, तब वो बॉम्बे होता था। तो उन्होंने कहा, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बोला मुझे 5 साल का टाइम दीजिए, मैं पहले इंडियन थिएटर, हिंदी थिएटर और बाकी लैंग्वेजेस वो स्टडी करूं, उसके बाद ही तो मैं हिंदुस्तान का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का डायरेक्टर बन सकता हूँ। क्या बात। 5 साल लिए उन्होंने और फिर उन्हीं की डायरेक्टरशिप में एनएसडी बिकेम लेजेंडरी। और Yes. ओमपुरी जी, नसीरुद्दीन शाह और पंकज कपूर जैसे एक्टर्स उनके टेन्योर में वहां से निकले। तो उनसे मुझे ट्रेनिंग मिली 92 से लेके 96 तक। पर्सनली उन्होंने ट्यूटर किया हमारे बैच को। तो बड़े सख्त थे भाई। सैटरडे की जो रिहर्सल होती थी वो सुबह होती थी, क्योंकि बाकी सब लोग सब काम कर रहे थे या कॉलेज स्टूडेंट थे। सैटरडे की सुबह 9 बजे से रिहर्सल होती थी और हमें पता था कि भैया आज किसी का बैंड बजना है, एक तो रोएगा ही रोएगा। सो तैयार रहते थे मेंटली साहब। और उनकी नजर इतनी बारीक थी ना, क्योंकि चेयर्स की सफाई से लेकर के रूम की सफाई सब हमारी जिम्मेदारी थी। कहीं गंदगी दिख जाए किसी को, नॉट हाइजीनिक, अनहाइजीनिक, दिस दैट, कड़क डांट पड़ती थी। लेकिन जब रिहर्सल्स ओवर हो जाती थी, परफॉर्मेंस ओवर हो जाता था, उसके बाद कास्ट पार्टी होती थी उनके फार्म हाउस पे, फिर वहां पर वो बियर भी पिलाते थे हमें, हंसी मजाक भी करते थे। सो तो आई थिंक रहीम दास जी का दोहा है, वो बिल्कुल फिट बैठता है। और अच्छे शिक्षक ऐसे ही होते हैं। तो कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, जी, कुंभ बोलते हैं घड़े को, करेक्ट। ठीक है ना। और गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट। गुरु कुम्हार की तरह है और शिष्य घड़े की तरह है जिसे वो कुम्हार बना रहा है। जी, चोट दे दे, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, उसको समतल करता है, चिकना बनाता है घड़े को, एकदम सारी उसकी कमियां दूर करता है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे। अंदर से तो हाथ से सहारा देता है, बाहर बाहे चोट, और बाहर से चोट करता है। वाह, क्या बात है। गूज़बम्प्स, आई मीन, तो या इट्स फैक्ट, इट्स फैक्ट। So I was lucky to have found my guru in इब्राहिम अलकाजी। और आज जो भी हूँ मैं, बतौर एक्टर, बतौर इंसान, जो कुछ भी अच्छा है मेरे अंदर, उसमें अलकाजी साहब का बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सुशांत, सत्या में एक छोटा सा सीन था आपका, बहुत छोटा सा सीन था, वो रेजर वाला या अस्त्र से कट वाला। और आज जब आप मुड़ के देखते हैं इतने सालों के बाद, तो कैसा लगता है? वहां से जो आपने शुरुआत की अरे थी, यार, टचवुड। गूज़बम्प्स। इनफैक्ट इत्तेफाक हुआ, मैं अ सिंपल मर्डर की शूटिंग कर रहा था और लॉकडाउन के बाद मेरी पहली शूटिंग थी। जी, और पहला दिन था शूटिंग का, मैं अपना पहला शॉट देने जा रहा था, तैयार हो रहा था, तभी यूनिट में से किसी ने बताया, सर आज सत्या को 22 साल हो गए। एंड आई वाज लाइक वाओ। वहां से शुरू किया था और 22 साल बाद मैं आज भी खड़ा हूं, एंड आई एम गोइंग टू गिव माय फर्स्ट शॉट फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट। दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। एंड बहुत अच्छी जर्नी रही भाई, बहुत ही कमाल की जर्नी रही है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, इतनी इंटरेस्टिंग। सबसे सबसे सीखा यार, अच्छे बुरे जैसे भी लोग मिले, उतार चढ़ाव, उतार जब हुए तब सबसे ज्यादा सीखा, जी, हाउ टू राइज बैक अब अगेन। और वो उतार वाले दिन याद रह जाते हैं, वही याद रहते हैं भाई, मुफलिसी बहुत इंपॉर्टेंट वाले होता दिन है। याद रहते हैं। वो जब स्ट्रगल के दिनों में जेब में पैसे नहीं होते थे, महीने के एंड में आपको पता होता था कि भाई अगले दिन बैंक जाके पैसे निकालने पड़ेंगे। जो नया, जो भी थोड़े बहुत जो काम करता था, वहां से जो पैसे आते थे, स्क्रिप्ट्स के ट्रांसलेशन करता था। तो अब तो हम दोनों गिनते थे, तब शादी नहीं हुई थी, तो चेंज बची होती थी भाई। तो 16-17 रुपए बचे हुए थे। एक दिन देखा, बस का टिकट उस समय 2 रुपए था, इलाहाबाद बैंक जाता था मैं, मॉडल 4 बंगला माहडा से।
बस का टिकट 2 रुपए था। मैंने कहा 2 रुपए तो है, कल बैंक जाके निकाल लाऊंगा अगले महीने का खर्चा। अभी 2 निकाल दिए तो 16 रुपए में से बच गए 14 रुपए। तो अपन तो रिच हैं, चल चाट खाते हैं। और वो याद रहता है जिंदगी भर यार। वो मिट्टी के तेल वाले बत्ती के स्टोव पे राजमा बनाना दोस्तों के लिए कढ़ाई में, और बैठ कर खाना छोटी सी माहटा की झोपड़ी में। ग्रेट जर्नी। एंड अभी तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से सावधान की जर्नी खत्म होने के बाद से वापस जो एक्टिंग का काम मिलना शुरू हुआ है, तो आई थिंक मोस्ट चैलेंजिंग एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग फेज ऑफ माय करियर राइट नाउ। इतने अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स करने को मिल रहे हैं और इतना क्रिएटिव काम इतना ज्यादा कमाल का हो रहा है। तो क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत कमाल का दौर चल रहा है, बहुत खूबसूरत दौर। We'll come to that, but year 2000, I always feel कि 2000 जो साल था वो आपके लिए बहुत कमाल का था। एक आप बहुत ही बड़ी ग्रैंड फिल्म जोश का हिस्सा थे, where entire industry everybody saw you, and the main was जंगल। वो कैरेक्टर क्या कैरेक्टर था, मतलब शायद जिन्होंने वीरप्पन का नाम सुना था और आपने उसको एक शक्ल दे दी थी, और वो जो दोनों का कॉम्बिनेशन जो हुआ था, वो जब हम लोग ने भी जब देखा था फिल्म तो डर गए थे कि ये कैरेक्टर क्या है। तो कुछ उससे बारे में बताइए प्लीज। वो बहुत इंटरेस्टिंग था यार, वो कैरेक्टर जिस तरह से मिला, उसके बाद उसके लिए जो प्रिपरेशन की। तो नहीं, ई निवास की फिल्म आई थी शूल जी, तो शूल की सक्सेस पार्टी चल रही थी शायद। तो उस दौरान रामगोपाल वर्मा ने मुझसे जिक्र किया कि मैं ऐसे ऐसे एक फिल्म सोच रहा हूँ और वीरप्पन के ऊपर बेस्ड होगी, तो आई थिंक यू विल फिट द बिल फॉर दैट। ओके सर। फिर वो गायब हो गए, 6 महीना गायब हो गए। और उससे पहले मैं उनसे मिला महबूब स्टूडियोज में। हाँ सॉरी, थोड़ा इवेंट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं। तो उन्होंने हल्का सा जिक्र किया था, ऐसे एक फिल्म प्लान कर रहा हूँ, फिर गायब हो गए 6 महीने, कुछ नहीं, कोई खबर ही नहीं। तो मुझे लगा भैया नहीं हो रही होगी फिल्म। तो फिर वो आफ्ताब वाली जो फिल्म थी मस्त, उसकी शूटिंग कर रहे थे। तो तब तक मैंने कुछ अपना गेटअप चेंज कर दिया था। सत्या में छोटे छोटे बाल थे, कौन में भी छोटे बाल थे, तो मैंने थोड़ा बाल बढ़ा लिए थे। जोश वालों को बोल दिया था कि भाई अब ऐसा है, छोड़ो, विग लगाने दो, है ना, भी तो मैं और कोई प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊंगा जिंदगी। मेरी वाइफ ने पुश किया, बोला कि तब तक शादी नहीं हुई थी, वाइफ होने वाली थी तब, कि जाओ एक बार रामू को नया गेटअप तो दिखा दो, भूल गया होगा वो फिल्म का जिक्र किया था, नहीं किया था। मैं गया महबूब स्टूडियोज में मिलने, वो बाहर ही बैठे हुए थे, शॉट ले रहे थे। दूर से मुझे देखा, देख रहे हैं, मैं पास आया तो ओह इट्स यू, यू चेंज कंप्लीटली। हाँ सर, दैट्स व्हाई आई केम। ओके वेट हैंग अराउंड। ओके, शॉट खत्म हुआ, केम टू मी, बोले रिमेंबर दैट फिल्म आई टोल्ड यू अबाउट। हाँ सर, 6 महीने पहले जो बोला था। सो I was looking for a guy who has no image. I was looking for a new guy. But now when you see this new look of yours, I think you'll fit the bill. So let's do that movie. I said, okay sir, great, fantastic. मैं घर आया वापस खुशी, बोला कि भाई तेरा टोटका सही बैठ गया, तुमने कहा मिलने जा और काम मिल गया। तो उसके बाद रामगोपाल वर्मा जी फिर गायब हो गए। मुझे बोला इसका लुक वुक सोचो, गेटअप डिजाइन करो, कुछ सोचो, फिर गायब हो गए। इस बीच आशुतोष गोवारीकर के यहाँ से फोन आ गया कि भाई हम लगान करके एक फिल्म बना रहे हैं, उसके लिए ऑडिशंस ले रहे हैं, तो प्लीज आइए आप। लेकिन ऑडिशन के लिए भी शर्त ये थी, बोले कि 3 महीने की डेट्स चाहिए नॉन स्टॉप। तो मैंने कहा भाई 1 मिनट देना मुझे, मैं 5 मिनट में फोन करता हूँ। संजय आई थिंक वाज द असिस्टेंट्स नेम। मैंने फोन रखा, गर्लफ्रेंड के साथ डिस्कस किया, क्योंकि हमारी शादी तय हो गई थी जो कुछ फेब में हो रही थी, तो वो जैन से मार्च की डेट मांग रहे थे। मैंने फटाफट घर फोन किया अपने पेरेंट्स को, कहा भी ऐसे एक है फिल्म का ऑडिशन है, लेकिन उन्हें तो डेट्स चाहिए, तो शादी पोस्टपोन कर दूं। तो उन्होंने शादी बोले पोस्टपोन तो नहीं हो सकती, प्रीपोन कर देते हैं शादी, बोले नवंबर में कर देते हैं, ये जनवरी से मार्च तू ले ले। ठीक है जी, वापस फोन किया, मैंने कहा जी मैं रेडी हूँ ऑडिशन देने के लिए। ऑडिशन हो गया, सब कुछ हो गया। फाइनली दे टोल्ड मी कि यार 2 कैरेक्टर्स हैं, एक वो लाखा का कैरेक्टर था जो यशपाल ने किया, और एक और कोई कैरेक्टर था, बोले उन 2 में से कौन सा है। आशुतोष कल वापस आ रहे हैं रेकी से, एंड वो आपको फाइनली बताएंगे। ओके, ये फोन पे मुझे बताया जा रहा है, और फोन पे दूसरा लैंडलाइन पे पीप आ रही है दूसरे फोन की। मैंने रखा, काटा, तो मिस्टर रामगोपाल वर्मा। सो सुशांत, डिड यू थिंक ऑफ अ गेटअप?
लाइक सर मैंने भी फेंक दिया, मैंने कहा हाँ सर यस यस आई हैव थॉट ऑफ इट बट आई एम नॉट रियली कन्विंस्ड, आई विल शो यू सम स्केचेस। सर बाय द वे व्हेन आर वी स्टार्टिंग अ मूवी? इन 10 days। टिपिकल रामू। आई एम टॉकिंग, वी आर सिटिंग इन अक्टूबर यार, अक्टूबर बिगिनिंग में, वो बोल रहा है मैं 10 अक्टूबर से शुरू कर रहा हूँ मूवी। मैंने कहा मरवाएगा यार ये। मैं फिर अगले दिन उनसे मीटिंग की, उसी दिन आशुतोष से भी मिलना था, आशुतोष के ऑफिस में गया, मैंने माफी मांगी, मैंने कहा भाई अभी तो मेरी ये मूवी शुरू हो रही है, तो आपकी तो जनवरी तक की डेट फंस जाएंगी वहां पे मेरी, नवंबर दिसंबर जनवरी नहीं हो पाएगा। सो ही अंडरस्टूड, बोला यस ही इज द गाय हु गेव यू अ ब्रेक इन सत्या, योर लॉयल्टी शुड बी देयर। तो लगान छोड़ के मैंने जंगल की, और जब जंगल की डेट्स की बात हुई मैंने रामू को बोला सर गेटअप वेटअप दिखाया अपना, ये सोच रहा हूँ। सो फिर मैंने कहा सर बाय द वे मेरी नवंबर में शादी है सर। ही लुक्ड एट मी, व्हाई व्हाई मतलब क्या सर, शादी करते हैं लोग? लुक एट मी, आई एम डिवोर्स्ड, इट्स अ यूजलेस थिंग, व्हाई यू गेटिंग मैरिड? सर है शादी, अभी क्या करूँ? सो हाउ मच टाइम डू यू नीड? सर 1 हफ्ता दे देना। ओके आई विल थिंक अबाउट इट। फिर मैं घर आया, मैंने कहा फंस गया यार, ये छुट्टी देगा नहीं देगा। घर वालों को फोन किया वापस, मैंने कहा सुनो वापस पोस्टपोन कर सकते हैं क्या शादी? घर वालों ने भी गाली दी, बोले अब कुछ नहीं होगा। So that's how I got the movie, and So in then the whole that research, entire रंगप्पन के बारे में सब पढ़ा। जंगल वाले लुक में आपने शादी की? Yes, the look। Oh my God। जी 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 जी, ब्यूटी एंड द बीस्ट की शादी थी एकदम। Oh God। But जो भी था यार वो शादी सफल रहे, मतलब आपके लिए बहुत भली। क्या क्या कैरेक्टर, क्या अगेन वन ऑफ द आइकॉनिक कैरेक्टर्स गिना जाएगा फ्रॉम 2000 एरा में। विलन्स की बात करेंगे तो दैट एंटायर थिंग फॉर years and years that's going to be there. That movie redefined the Daku genre, was redefined by that movie. The look and feel and everything changed. और आपके कुछ फैंस के बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ फैंस के ये है कि एक तो थोड़े से आप कंजूस बन गए, थोड़े रोल्स कम कर रहे हैं, तो ये जो आपने सावधान इंडिया के बाद की जो न्यू पॉपुलैरिटी है, राइट ड्यू आई से पॉपुलैरिटी, और जो रंगबाज एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो आपने काम किया, तो अब इसके बाद क्या आप विल वी सी यू डूइंग मोर रोल्स? यस यस ऑफ कोर्स। और आई डिड नॉट चूज टू डू लेस वर्क यार, वो गड़बड़ हो गई। सावधान में बिजी था, हालांकि इतना बिजी नहीं था, महीने के 10-15 दिन बिजी होता था, बट साथ में मैं सेंटा का जनरल सेक्रेटरी भी बन गया, हमारी एसोसिएशन है एक्टर्स की। सो देयर वाज अ जनरल परसेप्शन इन द इंडस्ट्री, जो मुझे अभी मालूम चला। सबको लगता था यार ये तो बहुत बिजी है, इसके पास टाइम ही नहीं है, तो लोगों ने एक्टिंग का काम ही ऑफर करना बंद कर दिया था। तो इस वजह से गड़बड़ हो गई। तो सावधान के साथ जो जर्नी खत्म हुई, दैट वाज अ बून इन डिसगाइज, ब्लेसिंग इन डिसगाइज। वापस लोगों ने काम पे देना बुलाना शुरू किया, तो फिर रंगबाज फिर से हो गया, सिंपल मर्डर हो गया, अब जिद आ गई। नाउ यू विल सी मी, अभी फ्लिपकार्ट पर एक चल रही है सीरीज कौन हु डिड इट, इट इज अ मर्डर मिस्ट्री, इंटरैक्टिव शो है। आप चूज कर सकते हैं कि भैया ये किलर है या नहीं है। अच्छा, इंटरैक्टिव आता है, इंटरैक्टिव है, इनाम भी जीत सकते हैं, प्लस परफॉर्मेंसेज हैं, कैरेक्टराइजेशन है। आई एम प्लेइंग अ डिटेक्टिव इन दैट, वेरी क्वर्की सनकी किस्म का आदमी है। इसके अलावा सिटी ऑफ ड्रीम्स नागेश कुकनूर की सीजन 2 में मैं आ रहा हूँ, एक एंट्री मार रहा हूँ उसमें। वो बड़ा खूंखार सा रोल है। देन 4 more shots सीजन 3, a mature romantic kind of angle। क्या बात है, वो है। Then there's a black comedy called Good Luck Jerry, which Janvi is playing the lead role. So I'm playing the main villain in that, but a very quirky main villain. Nice. So varied things are happening. So yes, I'm sorry for disappearing, भाई, not planned, but मैं लगातार बना रहूँगा। Superb lineup है ये। कुछ एक और क्वेश्चन ये है कि आपने कन्नड़ फिल्म में काम किया था, तो यू नो तो ये है कि नेक्स्ट कन्नड़ फिल्म जो आ रही है, बहुत बड़ी फिल्म आ रही है, दैट इज KGF 2, एंड द टीजर हैज क्रॉस्ड ऑल द रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। तो कितने एक्साइटेड है आप, और क्या हम यश के साथ कोई फिल्म में आपको कभी? पता नहीं यार, मैं देखो यार बुलाएंगे तो मैं कर लूंगा, आई डोंट नो। अभी तक ऐसा कोई कन्नड़ा का ऑफर आया नहीं है। दूसरा पहलवान की थी, विच वाज ह्यूजली अप्रिशिएटेड, and Kicha Sudeep supported me so much in that, from the language part to shot taking, everything. So it was a pleasure working with Kicha Sudeep. We became good friends. So next मौका मिलेगा तो जरूर देखूंगा, but Kannada is producing some amazing stuff right now, and KGF 1 was fantastic. Now part 2 is coming, so I am looking forward to it, because visually though it's like going to be stunning. I know action and visuals, it's going to be awesome. So everybody's waiting, and
if I get to work with the team, why not? Yeah, I would love to. That is a dream come true. Fingers crossed for that. So all the best for all your future ventures and thank you again for this superb role. मजा आ गया बहुत, मतलब एक फैमिली के साथ बैठ के पूरी सीरीज देखने में जो एक एपिसोड थोड़ा टाइम लगा फर्स्ट एपिसोड में धीरे से, बट यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम इनटू दैट सीरीज एंड देन एक बार उसने जो पकड़ लिया तब लास्ट तक आप छोड़ नहीं सकते हो. यू वांट टू सी लास्ट में क्या हो रहा है, एवरीथिंग. मजा आ गया एंड सो नाइस टॉकिंग विद यू. सो नाइस टॉकिंग. Same here, bhai. Pleasure talking to you. And a big hug to all your viewers and listeners, Divya. And all the best to you too. Thank you. May this year be very, very good and fantastic for you. Keep growing, my friend. Keep growing. Thank you, Sushant. And stay safe. Yeah.